Hello student. Today UPSC has released marks of the students who had given civil service exams in 2019, and I am referring to the marks scored in psychology optional. So many students have given me messages that my score is this and this, so how I can improve marks. So as you know that a little difference in the score makes a big difference in rank, and it also decide whether you will be selected or not. So of course every year same questions come, and on the basis of my experience that I have accumulated over the year, I try to answer, and this time also I will try to answer. I have seen that one of my students who has joined my test series twice, she has scored around 280. Okay, many students have 260 or 250 also. So in my group there are students who couldn't score more than 250, and there are students who scored very good marks also. So I want to know this thing, that whether it is 280 or 300 or 250 or 240, and averagely 117, 170 or 113, 115, like that marks can come. When you are when you try to understand these scores, then two and three things are very clear. Then one, that some people score slightly more in paper 2 because of various reasons, because paper 2 are related to issue and applications. So sometime when you contextualize your knowledge, when you use your some common sense and data from general studies also within the framework of psychology, sometimes you become successful in making your points. That is very appealing also. So some because of that thing, marks could be slightly more in paper 2, but paper 2 1 is strictly theoretical, conceptual. So only when you have rigor, theoretical rigor, only when you have good knowledge base, then you get good marks in paper 1. This is the thing. So now the basic question that students ask is that how to improve question is. So many of students try to join test series, my test series also, they try to join classes also. It depends whether, if you do not have adequate knowledge of concepts, theories, when you are suppose getting 100 marks or 110 marks, definitely you should join class. Not necessarily this class, any class of psychology you can join. But if you are scoring in higher range, and you are aspired to score 300 around, and you are not reaching because of the shortage of 20 marks or 30 marks, you may be in or out. If this is the situation, then you can join our test series program also. What we will get out of this test series program and how it will help, because many so I had students in last batch, and they have given examination, and their score is not very satisfactory. So that student has also joined my test series, but he also has not scored very well. So do you know the reason? Reason is that I have given comment on the answer. See the things, even I have not given very satisfactory marks. So I'm not very confident of your performance. Then only when you improve your performance, for example, I say that knowledge of this theory is not appropriate, knowledge of suppose trial and error learning is not appropriate, for example, in educational psychology. Whether you have worked upon the suggestion or not, listen carefully. हमने जो सजेशन दिया था उस पर आपने वर्क किया. कई कारण हो सकते हैं, मे बी यू आर विलिंग, but you didn't have time that time.
आपने प्री क्वालिफाई होने के बाद बहुत कम टाइम होता है. सो मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम you didn't work on the suggestions, so improvement has not occurred, आया ही नहीं. एंड एक टेस्ट ख़त्म हुआ, दूसरे के प्रिपरेशन में आप लग गए. तो इस तरीके से जो टेस्ट देने से केवल डेवलपमेंट नहीं होता. टेस्ट एंड वॉट एवर सजेशन इज गिवन बाय द टीचर, इफ़ यू वर्क अपॉन द suggestions and improve, and again you get your answer evaluated, a few answer again, then you will come to know that yes, improvement is coming. तो अभी इस टेस्ट सीरीज़ में आपको ज्वाइन करना है, तो व्हाट इज़ द गारंटी दैट योर मार्क्स विल इम्प्रूव. अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और उसके सजेशंस पे थोड़ा वर्क करते हैं, देन इट विल कम. जैसे समथिंग लाइक डायग्नोस्टिक है ना, डायग्नोस्टिक का जो होती है कि ब्लड में आया रिपोर्ट ये है आपका शुगर लेवल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल ये है, दिस है, दैट है. तो ओनली व्हेन यू वर्क अपॉन द सजेशन एंड गो फॉर मेडिकेशन और रिमेडियल मेजर्स जब आप लेते हैं, यहाँ पे मैं एक एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ, तभी तो इम्प्रूवमेंट आता है हेल्थ में, समथिंग लाइक दैट. तो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आपके पास टाइम नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग टाइम, और इवन इफ़ यू हैव टाइम देन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड. Several factors are there. So in this case you will find difficulty in improving your marks. So my advice is what, that जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है, जिन्होंने कम स्कोर किया, बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ये है कि दैट पर्सन डेफिनेटली हैज़ एज ओवर अदर. मे बी कई लोगों का तो पेपर ही पूरा नहीं होता, तो पहले तो आप पेपर पूरा करने के लिए आपके पास सारे क्वेश्चंस का नॉलेज होना चाहिए, है ना. तो ये बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर पेपर छोड़ दिया तो फिर गया. तो यू मस्ट इंश्योर दैट डोंट ट्राई टू ब्रिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेलेंस इन द क्वालिटी ऑफ वन आंसर बाय एट द कॉस्ट ऑफ अदर. सो एवरेज क्वालिटी आंसर्स विल वर्क, बट यू ट्राई टू आंसर ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, जितने भी हैं उसको करना चाहिए आपको आंसर, तभी होगा. पूरा पेपर आप आंसर करिए जितना रिक्वायर्ड है. फर्स्ट. सेकेंड थिंग, इफ़ यू, बिकॉज यू हैव गिवन सपोज लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, सो नाउ यू हैव डेटा दैट विच एरिया इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, रीड अबाउट दैट थिंग. इफ़ यू डू नॉट हैव नॉलेज, देन नो एनी टीचर कैन इम्प्रूव यू. सो नॉलेज को आप इम्प्रूव करो. सपोज यू डू नॉट नो दैट व्हाट हैपेंस इन डेल्टा वेव एंड बीटा वेव की एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज आप डीप स्लीप का, तो इफ़ यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दैट थिंग, व्हाट टीचर विल डू. सो यू शुड गो फॉर दिस थिंग. स्टेट थ्योरी एंड नॉन स्टेट थ्योरी ऑफ मेडिटेशन यू आर गोइंग थ्रू, फॉर एग्जाम्पल, एंड सो कॉल्ड difference in the idea about whether meditation involves altered state of consciousness or not. So if you do not have knowledge, then what teacher will do? सो नॉलेज वाले पार्ट पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना. सेकेंड थिंग दैट आंसरिंग स्किल्स. सम टाइम यू हैव नॉलेज बट यू ओवर स्टफ, ओवरलोड द आंसर. मेरे पास कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं. सो द आइडियाज़ आर वेरी नॉट क्लियर बट मेसी. तो उनको मैं क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ कि आंसर में बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग किया हुआ है. The major thing, answer should be linear and clear. You should not try to stuff everything you know, but you should answer, and answer will be some specific things, some specific. If some question is there, there may be some issue, and in that issue, maybe only some aspects have been asked. So you need not to answer all the aspects that are related with that issue. Getting? जो पूछा जाए अब उसकी बताइए. तो इस तरीके से उसको कहते हैं हम एप्रोप्रिएट आंसर, है ना. और उसका एडिक्वेट भी होना चाहिए, जितना पूछा जाए उतना बताइए. कभी कभी हमारे पास नॉलेज कम होता है, देन वी डू नॉट एलोबोरेट एडिक्वेटली. सो ये भी चीज़ होना चाहिए कि आपको आंसर्स हो और उसका स्पेसिफिक आंसर हो. इससे आपका टाइम भी बचता है, यू सेव टाइम एंड यू कैन गो फॉर अदर आंसर एज वेल. तो कई लोगों के जो पेपर छूटते हैं उसमें ये कारण बहुत बड़ा कारण है कि एक ही आंसर में बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में रहते हैं, एंड देन अच्छा करने के चक्कर में रहते हैं और करने की कोशिश करते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ होता है उधर
बाकी पेपर कुछ बड़े वाइटल आंसर छूट जाते हैं। कई एक बड़ा वो सवाल आता है कि दैट शुड आई स्टार्ट विथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर लाइक 20 मार्कर्स को पहले करें या 10 मार्कर को पहले करें। देखिए, इन जनरल देयर इज़ टेम्पटेशन टू राइट मोर इन द बिगिनिंग। तो अगर आप बड़े वाले क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ कि कर लो शुरुआत में, कि अगर कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि मार्क्स की पोटेंशियल ज़्यादा है, देन यू विल ऑब्वियसली विल स्कोर मोर। शुरुआत में ज़्यादा लिखने की टेंडेंसी सब में होती है, टेम्पटेशन भी सबको ज़्यादा होती है, इन ऑन एन एवरेज सभी में होता है। तो उस समय बड़े क्वेश्चंस को करना चाहिए। अगर आपने छोटे से स्टार्ट किया तो बिकॉज 10 इट कैरीज ओनली 10 मार्क्स एंड सपोज यू हैव रिटेन अ लॉट, देन क्या होगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में रह जाएंगे, तब लगेगा मुझे बहुत बड़ा पोर्शन रह गया, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है सेकंड हाफ में जाकर। तो बेहतर है कि हम बड़े एरिया को पहले निकाल लें, ये मेरा एडवाइस है। ऑल डिपेंड्स अपॉन, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है वो तो वो कर लो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। एनीवे, इसका कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, ये डिपेंड अपॉन व्हाट सूट्स यू। बट ये सब परफॉर्मेंस एनालिसिस जो मैं किए जा रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज इम्प्रूव कर सकता है आपको, क्लासेस इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 2020 के लिए क्या क्लास लेंगे आप ऑब्वियसली, लेकिन कुछ आंसर्स आप टीचर से इवैल्यूएट ज़रूर कराएं जहाँ भी आप करते हैं, है ना। एंड देन वर्क ऑन द फीडबैक गिवन बाय द टीचर। एंड नहीं तो क्या होगा कि ना, आप खुद ही डायग्नोज करोगे, खुद ही आंसर्स करोगे। सो सम यू मे बी स्केप्टिकल अबाउट कि कभी कौन, बिकॉज you have not scored well for example, then how can you say that you are there must be some flaws, कुछ तो गलती है जो आपने डिटेक्ट नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अभी डायग्नोज किया हुआ है कि ये अभी हमने पूरा नहीं किया है, अभी मुझे खुद से पता कि मेरे अंदर क्या कमी है, डेफिनेटली डू सेल्फ स्टडी और करो उसको ज़्यादा अच्छे से। बट इफ़ यू फील कन्फ्यूज, इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर फॉर एग्जाम्पल, in that case you can consult me also and other individuals also who are expert of the field. Then this is the way to improve your marks. तो आप 2020 दे रहे हैं तो चाहे कुछ भी दे रहे हो आप, आपके मार्क्स जो आए हैं बेसिकली दैट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव फीडबैक। अभी आपने रियल में ये किया है। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, छोड़ो। लेकिन अगर यूपीएससी के स्टैंडर्डाइज सिचुएशंस में यू हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स, सो यू हैव रीज़न टू बिलीव दैट यस दिस इज़ माई लेवल। तो अगर आपके 240 आए तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि दैट नाउ only 60 marks gap I need to cover. It is not to say that 240 is guaranteed getting. You should keep striving for that level also. So under the highest level of motivation and your present knowledge, you scored 240. Now one thing you can assure yourself that okay, now I need to bridge this gap. Only 60 marks difference is there, and that I need to do. So if you strive, continuously strive, then probability is there, they definitely will reach that level. So try your best. कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ओवर एनालाइज करना नहीं चाहिए। कभी कभी विजिबल कारण होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसा नहीं देखना चाहिए। इट इज़ वेरी विजिबल, देन यू शुड वर्क अपॉन दैट थिंग। कई लोगों को मैंने देखा कि उसके पूरे एरिया सिलेबस ही कवर नहीं हुआ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। I have several students because I keep guiding, so they have not scored very well. So that was very predictable. वो जिस समय उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसी समय प्रेडिक्टेबल था कि इतना से ज़्यादा मार्क्स आना नहीं है। बट बिकॉज ही हैज़ क्लियर्ड और ही हैज़ क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो मेंस तो देंगे। बट बिकॉज योर प्रिपरेशन ऑफ जनरल ऑप्शन सब्जेक्ट इज नॉट एडिक्वेट अप टू दैट लेवल, देन दिस वुड हैपन। तो आई होप कि आई मेड सेवरल एस्पेक्ट्स क्लियर, है ना, कि किन किन कारण से लोगों के मार्क्स कम आते हैं और उनको क्या करना चाहिए। सभी को कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्लासेस नहीं लेना चाहिए, ओके। सभी को टेस्ट सीरीज भी नहीं लेना चाहिए, और जिनको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए कि केवल टेस्ट लिखने से नहीं, उसके जो करेक्टिव मेजर्स से भी ध्यान देना होगा। सो हियर आर फ्यू सजेशंस दैट यू कैन use to improve your score. So I hope this will help you. Thank you. In the next video I will answer, I will try to guide you further. I will try to give some model answer of the questions. Thank you for watching this video.